السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ اور میں ہوں مہروق شہریار۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ذکر کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے وفاقی کابینہ سے خطاب کا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فوج اور پولیس کے افسران اور جوان شہید ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے خلاف منظم سازش ہیں۔ پاکستانی حکومت اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کو پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ پارلیمنٹ اور ریڈیو پاکستان سمیت تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے نئی وارداتیں کر رہے ہیں۔ PTI کے آفیشیل ویب سائٹ سے سپہ سالار اور ان کے خاندان کے خلاف باتیں کی گئیں۔ 9 مئی کو اسی سیاسی ٹولے نے اس ملک میں غدر مچایا تھا۔ معصوم لوگوں اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور یہ اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ خاص طور پر بلوچستان اور KP کے علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو عظیم سپوت ہیں قوم کے، پاکستانی فوج میں، پولیس میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منظم سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ بدقسمتی سے پاکستان کے بعض سفارت خانوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ جرمنی میں حملہ ہوا ہے، دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے واقعات لندن میں ہوئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں۔ متعلقہ ممالک کے سفیروں کو بلا کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیمانش کرنا چاہیے اور ان سے بڑی واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ ہمارے سفارتکاروں کو ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ایک ویزا رجیم میں ایک بڑی میجر ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں، یعنی 126 ممالک سے آنے والے پاکستان میں جو ٹورسٹ ہیں یا جو بزنس مین ہیں یا ٹریولرز ہیں، ان سے ویزا فیس نہیں لی جائے۔ جبکہ وفاقی کابینہ میں PTI پر پابندی اور 3 رہنماؤں پر آرٹیکل 6 کے نفاذ کا معاملہ زیر غور نہیں آ سکا۔ معاملے پر پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کے بعد معاملہ دوبارہ وفاقی کابینہ میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ SECP ایکٹ 1997 کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کی اجازت دی گئی۔ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان MOU پر دستخط کی منظوری دی گئی۔ ساتھ ساتھ نجکاری کمیشن کے بورڈ کے اراکین کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا، جبکہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی اور دوست ممالک کے سرمایہ کاروں اور شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ تو دوسری جانب سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی بانی PTI پر شدید تنقید۔ کہا بانی PTI کے اعتراف جرم پر کوئی حیرانی نہیں، یہ اعتراف جرم نہیں بلکہ سزا دینے کا وقت ہے۔ یہ شخص ملک اور ریاست کے خلاف کھڑا رہا، اسی نے کہا کہ ملک کے ٹکڑے ہوں گے۔ اسی شخص کو سزا دینے میں اتنی سستی دکھائی دی جا رہی ہے۔ اس کی جماعت دہشت گردی کرتی ہے، اسے سیاسی جماعت کہنا غلط ہوگا۔ ملک کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ 18 مارچ کو عدالت گئے تو لشکر ساتھ لے کر گئے۔ 18 مارچ کے بعد کہا گیا کہ کسی نے ہاتھ لگایا تو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہتے ہیں ان کا سوشل میڈیا سینٹر بند کر دیا گیا۔ وہ سوشل میڈیا کا سینٹر نہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی کا سینٹر تھا۔ یہ اندر بیٹھے دہشت گردی کی منصوبہ سازی کر رہے تھے۔ یہ شخص ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا، پھر IMF کو خط لکھا کہ مدد نہ کرو۔ مہنگی بجلی بھی اسی شخص کے کارنامے ہیں۔ جب عدم اعتماد کے ذریعے باہر کیا گیا تو کاغذ لہرایا گیا کہ امریکہ نے سازش کر دی۔ یہ اعتراف جرم، اعتراف گناہ کا وقت نہیں ہے، یہ سزا دینے کا وقت ہے۔ 2018 سے RTS بٹھا کر اسی شخص کو مسلط کیا۔ 2018 سے 2022 تک کیا کیا؟ اپنی نالائکی کی دہشت گردی، اپنی نااہلی کی دہشت گردی، اپنی چور بازاری کی دہشت گردی، ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا۔ اور آج کہتا ہے میں نے 9 مئی کی پرامن کال دی تھی۔ اسی طرح پرامن طریقے سے 2014 کا دھرنا بھی کیا۔ اسی طرح پرامن طریقے سے ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے یہ اس وقت سے معاملہ شروع ہوا ہے کہ باہر اپنے نمائندے بٹھا کر تو ملک اور ریاست کے خلاف باہر سے ان تمام بیرونی سازشوں کا حصہ بن کر ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑ بھوکا کر کے چلا گیا۔ ملک کو ترقی 6.1% کے اوپر، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکالا گیا، کاغذ لہرایا کہ میرے خلاف US نے سازش کر دی۔ بجلی کے بل جن کا آج رونا روتے ہیں، یہ ان کی مہنگی کی ہوئی بجلی ہے۔
पुलिस वाले क्या करते थे, वारंट लेकर जाते थे पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए। जहाँ दहशत गर्दी का अड्डा बना हुआ था, पेट्रोल बम्स की तरबियत होती थी, वहाँ जब पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो हाथ ऊपर करके जाती, क्योंकि वहाँ सरकार बैठे हुए, मास्टरमाइंड बैठे हुए, मंसूबा साज बैठे हुए, जिन्होंने तरबियत दे रहे थे औरतों और बच्चों और लड़कों को कैसे पेट्रोल बम बनता है। और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी शुरू हो गई है। पीका एक्ट पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद ट्रायल्स का इख्तियार दे दिया है। इस्लामाबाद में डिजिटल क्राइम में गिरफ्तार अफराद का ट्रायल उन अदालतों में किया जाएगा। रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल भी पीका एक्ट के तहत होने का इम्कान है। आजकल सियासी बिसात पर नई टर्म डिजिटल दहशतगर्द जुबान ज़द-ओ-आम है। डिजिटल दहशतगर्द क्या होता है और आम दहशतगर्द से कितना अलग और ख़तरनाक है, जानते हैं साथी एंकर माहरूफ शहरियार से। आम दहशतगर्द बात मनवाने के लिए असलहा उठाता है तो डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए झूठ फैलाता है। आम दहशतगर्द इदारों पर हमला करता है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डिजिटल दहशतगर्द इदारों में इख्तिलाफात पैदा करते हैं। आम दहशतगर्द कच्चे जहनों का ब्रेन वॉश करता है तो डिजिटल दहशतगर्द पैगामात के जरिए जहन साजी करता है। आम दहशतगर्द नज़रिए की बुनियाद पर जाने लेता है, जबकि डिजिटल दहशतगर्द मवाद के जरिए इश्तियाल फैलाता है। आम दहशतगर्द को कानून शिकंजे में लेकर सज़ा दे सकता है, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द को सज़ा देना इतना आसान नहीं होता। तो उधर पीटीआई पंजाब ने भी बानी की रिहाई तक अलामती भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बिचड़ ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए असम्बलियों में आए हैं, एहतजाज से रुकेंगे ना झुकेंगे। अली इम्तियाज वड़ाइच बोले, स्पीकर ने अवाम के टैक्स का बेदरिग इस्तेमाल किया, करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां मंगवाई गई हैं। अलामती भूख हड़ताल का कैंप ये इनिशियल स्टेज पे है। ये हमारा टेनोर भी बढ़ेगा और इसका दायरा कार भी बढ़ेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिविजनल हेडक्वार्टर में हमारे वर्कर्स इस वक्त तैयार हैं और हर जगह पे ये दायरा कार हमारा वसी होता जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। आर्टिकल 6 किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। आप इसमें ये काम करके देखें, आपको तारे नजर आ जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब IMF ने भी एतराफ़ कर लिया है कि हुकूमत को IPPs के साथ मुआहिदों की वजह से इक़्तिसादी मुश्किलात दरपेश हैं। आलमी इदारे ने महसूलात तसल्ली बख्श न होने पर मिनी बजट पेश किए जाने का इंदिया भी दे दिया। कहा कि दारोमदार नए प्रोग्राम की कामयाबियों पर है। नए पैकेजेस की किस्तें जारी करने की टाइमलाइन तैयार की जा रही है। इस्लामाबाद से उमर हयात खान रिपोर्ट करेंगे। शराइत मिनोअन मानने की IMF की हिदायत, अमल दरामद न होने की सूरत में मिनी बजट की तलवार लटकेगी। पैकेज की किस्तें जारी करने की टाइमलाइन की तैयारी। IPPs के मुआहिदे की वजह से इक्तिसादी मुश्किलात दरपेश। IMF ने महसूलात तसल्ली बख्श न होने पर मिनी बजट का अंदिया दे दिया। कहा दारोमदार नए प्रोग्राम की कामयाबियों पर है। डॉलर की कीमत मार्केट का इख्तियार करार, पॉलिसी रेट पर भी कड़ी नजर। PIA और बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के फैसले जल्द करना होंगे। IMF ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि बिजली के तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर करना होगी। ज़राई टैक्स का टारगेट सूबों और विफाक के दरमियान ताउन पर मुनहसर है। हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे बजट अहदाफ मुतासिर हो। पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान हक रखता है कि उसकी बात सुनी जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तवील शराकतदारी रही है, जिसमें काफ़ी मुश्किलात भी आती रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना है, जिसमें सबसे अहम दहशतगर्दी है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इशूज़ हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल घड़ी में और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने थरपारकर में पानी की निकासी मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। बदीन, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह की 12,70,000 एकड़ ज़मीनें सैलाब से महफूज रहेंगी। मुराद अली शाह कहते हैं कि पानी की निकासी के पुराने रास्तों की बहाली मीरपुर खास और नवाबशाह वाले जो आवाम है उनका पुराना मुतालबा था, जो कि अब पूरा कर दिया गया है। एक देरी हुआ था, ये अभी का नहीं था, ये सालों से बात चल रही थी। 80 की तिहाई में यहाँ ये LBOD बनी, BOD
वैसे तो अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें जो गलतियां रह गई कि जो नेचुरल धोरे थे, वो वाटरवेज थे जिससे पानी का निकाल हुआ करता था, वो एलबीओडी ने सारे बंद कर दिए। और वो गलती भुगत रहे थे, उसका नुकसान था वो हमारे शहीद बेनजीराबाद के लोग, कांगड़ के लोग, उमरकोट के लोग, मीरपुर खास के लोग, यहाँ तक के थरपार तक के, और खास तौर पे जो 2011, 2012, 2020 और आखिर में 2022 का मेगा फ्लड आया, सारे इलाके के लोगों की यही डिमांड थी कि हुकूमत को ये जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। तो उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। इक़्तिसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू की गई। मरियम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन को सराहा। जर्मन सरमायाकारों और कारोबारी इदारों को दरकार सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नौजवानों को मार्केट के तकाज़ों को पूरा करने वाली स्किल से आरास्ता करना चाहते हैं। और अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। भाई, पंजाब वालों पर तो कुदरत मेहरबान हो चुकी है। सूबे भर में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में खूब बारिश हुई है। जल थल एक हो गया है। आज भी कई शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। तो कराची वालों ने भी सुख का सांस ले लिया है। समुद्री हवा बहाल हो गई, मौसम खुशगवार हो गया, मतला अब्र आलूद है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। कल भी सदर ज़ैनब मार्केट, शार फैसल, आई चुंद्रीगढ़ रोड के अतराफ बारिश हुई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी वाक़ हो गई। इस वक्त मौसम कैसा है, जानते हैं मरियम हसन से। मरियम, बताइए। देखिए, बिल्कुल जुलाई का रिवायती मौसम जो है वो वापस आ चुका है। शहर में समुद्री हवाओं का जो है वो राज है, जिसके सबब मतलब जो है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। वक्फे से शहर के मुत्तहिद इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज तक जो है बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि 3 रोज के बाद जो एक और हवा का कम दबाव जो है वो सिंध में दाखिल होगा, जिसके बाद सिंध समेत कराची में भी जो है गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। अलबत्ता ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, एग्जैक्ट डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन प्रेडिक्शन यही की गई है कि लास्ट में एंड ऑफ द जुलाई में कराची वाले जो है एक बार फिर से जो है मानसून की बारिशें जो है वो देख सकेंगे। और इस दौरान जो है गरज चमक के साथ तेज बारिशों का इम्कान जो है महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो जाहिर किया गया है। अलबत्ता आज और दिन तक जो है मौसम इसी तरीके से खुशगवार रहने का इम्कान है और बूंदाबांदी का सिलसिला सुबह और शाम के औकात में जो है वो मौसम मुतदिल और खुशगवार ही रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ठीक है मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। और जी, कराची वालों के लिए एक सस्ती सी तफरीह है समंदर। थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है, कराची वाले रुख कर लेते हैं सी व्यू का। खूबसूरत शामें और खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान वहीं पर मौजूद हैं। काशान, फैमिलीज आई हुई हैं, मौसम को एंजॉय कर रही हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें कराची में समंदरी हवा भाल होते ही गर्मी का जोर टूट गया। शहर में इस वक्त जो है काले बादल छाए हुए हैं और कराची वाले जो है ऐसे मौसम को एंजॉय करने में सबसे आगे हमें दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं सी व्यू पे मौजूद हूँ, जो कराची का साहिल है। खवातीन मेरे हमरा मौजूद हैं, कोई यहाँ पर घोड़ा सवारी कर रहा है तो कोई ऊँट सवारी कर रहा है। इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, मौसम काफ़ी दिनों बाद ऐसा खुशगवार हुआ है कराची का? हम लोग मुल्तान से हैं तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। काफ़ी दिन गर्मी थी बट अब मौसम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर शेरियत मौजूद है जो एंजॉय करने मौसम को सी व्यू पहुँची है, जबकि मौसम जो है काफ़ी अच्छा फील किया जा रहा है। इस वक्त कराची के अंदर मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है, जिससे शहरी जो है काफ़ी जो है ठीक है। लग रहा है काशान भी मौसम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका काशान। और बच्चों के तो मजे आ गए। सिंध हुकूमत ने गर्मी की तातीलात में मजीद 14 रोज का इजाफा कर दिया। बच्चों का दिल गार्डन हो गया है। कहते हैं पार्क जाएंगे, खेलेंगे, खूब मजे करेंगे। आपको बताएं कि नेपाल के तैयारा हादसे में सवार तमाम मुसाफिर हलाक हो गए हैं। एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में अमले समेत 19 अफराद सवार थे। बिल्कुल, उड़ान भरने से पहले हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में अमले समेत 19 अफराद सवार थे, जिनमें से 18 की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। वाहिद बचने वाले पायलट को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाब से कबल सर्वे में अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में मवाजने पर नया इंकशाफ सामने। कैमला हैरिस और ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कैमला की मकबूलियत 46% है जबकि ट्रंप 45%। दोनों उम्मीदवारों की मकबूलियत का ये तनासब जुलाई में बराबर था, जबकि सर्वे में 9% वोटर्स का ये कहना है कि उन्होंने ताहाल फैसला नहीं किया कि वोट किसे देंगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने कैमला हैरिस के खिलाफ मवाखज़े की कार्रवाई के लिए दस्तावेज जमा करवा दी है। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस एंडी ओगल्स ने सदर जो बाइडन को भी ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। एंडी ओगल्स अमेरिका की नायब सदर कैमला हैरिस के शदीद मुखालिफ हैं। आर्टिकल में दावा किया गया है कि कैमला हैरिस ने सदर बाइडन की जहनी हालत से मुतालिक मामला छुपाए, जिससे अवाम का एतमाद मजरूह हुआ है। और एक और अहम इंकशाफ सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप पर एक मरतबा फिर से हमला हो सकता है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने खबरदार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को खुले मकामात पर रैलियों में शिरकत न करने की तंबीह कर दी गई है। कहा गया कि इंतखाबी मुहिम के लिए ट्रंप खुले मकामात पर जाने से गुरेज करें। ट्रंप की टीम ने इंडोर मकामात की तलाश शुरू कर दी। गजा की सूरत हाल की बात करें तो इसराइली फौज की बमबारी और गोलाबारी के नतीजे में 24 घंटों के दौरान मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 329 अफराद जख्मी हो गए हैं। खान यूनुस में मजमूई शहदा की तादाद 121 हो गई। इसराइली फौजियों ने गजा के 80% रिहायशी इलाकों में फलस्तीनियों को अपने घर बार छोड़ने की धमकी देते हुए उन्हें नो गो जोन एरिया करार दे दिया है। तूलकरम में इसराइली फौज की फायरिंग से माँ बेटी समेत 5 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज ने हमास कमांडर को शहीद करने का दावा किया। और अब आपको बताएं कि बांग्लादेश में अवामी एहतजाज की ताकत ने काम दिखाना शुरू कर दिया है। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। मुजाहिरों में कमी के बाद टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो चुकी हैं, जबकि इंटरनेट की सर्विस भी फाल हो गई है। ताहम इसे सुस्त रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर पाबंदी फिल वक्त बरकरार रहेगी। मुल्क भर में आज 7 घंटे के लिए कर्फ्यू में नरमी भी की जाएगी। दफातर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। तलबा ने इंटरनेट मुकम्मल बहाल करने, जामियात को पुलिस से खाली करने और गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने के मुतालबात कर दिए हैं, जबकि 48 घंटे का अल्टीमेटम जुमेरात को ख़त्म होने पर अगला लाहे अमल बताया जाएगा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स से कबल शहर में मौजूद चूहों ने इंतजामिया की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। सफाई की बेहतरी में सूरत हाल के बावजूद पेरिस में चूहों की कसरत है, जो इधर से उधर दंदनाते फिरते हैं। खासतौर पर सयाहती मुकाम एफिल टावर के इर्द गिर्द का इलाका और गार्डन्स ऑफ लोवा उनका पेरिस की पसंदीदा है, जबकि इंतजामिया चूहों पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। और क्या आप कोलेस्ट्रॉल और कैंसर से बचना चाहते हैं तो अपनी ग़िज़ा में कटहल शामिल कीजिए। ये क्या है, इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखने में तो अजीब सा है, लेकिन इसके फायदे बड़े हैं। कटहल बांग्लादेश का कौमी फल है और पाकिस्तान में भी बआसानी मिल जाता है। खाने वाले कहते हैं कि इसका जायका बहुत ही लजीज है। तकरीबन मैं 17-18 साल से खरीद रहा हूँ। ये मेरे घर वाले शुरू से इसका अचार डालते हैं हम लोग। मैं अचार डालने के लिए इसको लेने आया हूँ अभी यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ कि ये चीज़ें खरीदें और कैंसर के लिए बहुत अच्छा इलाज है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये कटहल ताकत का बेशबहा खजाना है, जबकि कैंसर जैसे मर्ज से निजात दिला सकता है, जबकि इसकी कीमत 250 रुपए से 300 रुपए फी किलो है। ये इसके अंदर दाने होते हैं, वो निकाले खाया जाता है। सर ये हड्डियों के लिए और कैंसर का सबसे बड़ा इलाज है। ये फायदेमंद बहुत चीज है, अच्छा चीज है ये। अनानास के बाद कटहल दुनिया का दूसरा बड़ा फल है। इसे सब्जी के तौर पर भी पकाया जाता है, जिसमें ताकत के साथ इसकी तिब में भी बहुत अफादियत है। कटहल फल बेहतरीन ताकत के साथ साथ कैंसर जैसी मुदी बीमारियों का भी वाहिद हल है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। और इंतकाम की आग नहीं देखती इंसान का कद काट। हॉलीवुड फिल्म द थिकेट का शानदार एक्शन ट्रेलर जारी हो गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bonews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।